A vector W is a linear combination of these vectors if W can be expressed in this form. W is linear combination of K1, V1, K2, V2 up to Kr, Vr. K1, K2 up to Kr are scalars. In exercise 5.2, we have to check which of the following are linear combination of U and V. I am going to solve part B for this question. These can be the ordered pairs, the triplets, polynomials or matrices. Now we have to show that W is a linear combination of U and V. You can say it U1, V1, U1, U2, any name you can give it. अब हमने क्या बताना है कि W इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि W इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर W को हम इस तरह लिख सकते हैं K1 V1 K2 V2। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो ये फॉर्म कहाँ तक बन जाएगी, W इज इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2। अब यहाँ पे मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म किया, W इज इक्वल टू K1U प्लस K2V। ये W की वैल्यू आ गई जो गिवन थी, ये U की, ये V की। अब K1 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई किया, K2 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये अभी ट्रिपलेट्स ही हैं हमारे पास। अब इनकी एडिशन जब मैं करूँगा तो एडिशन के लिए मेरे पास क्या होगा, 0 प्लस K2 माइनस 2K1 प्लस 3K2, 2K1 माइनस K2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये कंपोनेंट है वेक्टर के, वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल। तो 0 प्लस K2 किसके इक्वल आ गया, 3 के, माइनस 2K1 प्लस 3K2 किसके इक्वल आ गया, 1 के, और 2K1 माइनस K2 इक्वल आ गया 5 के। अब मैंने चेक करना है K1, K2 और K3 की वैल्यूज़ को मैं फाइंड आउट करूँगा इन इक्वेशन से, और फिर उनको मैं इस इक्वेशन बी में पुट करके चेक करूँगा वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। In equation 1, K2 is 3. Putting this value into, we get the value of K1, that is 4, and then putting value of K1, or no, we had just K1 and K2, so we have computed K1 and K2. Now putting these values in B, left hand side is equal to right hand side, it means W is linear combination of U and V. It means W, U and V can be expressed as a linear combination for the vector W. In question number 9th, we are given with P1, P2 and P3. What will be the first step? That some vector, that is P can be expressed as a linear combination of P1, P2 and P3. तो मैंने लिख लिया P is equal to K1 P1 plus K2 P2 plus K3 P3। अब P की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, फिर K1 इंटू P1, K2 इंटू P2 और K3 इंटू P3। अब ये क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं तो मैंने K1 को पहले इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर K2 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर K3 को। ये K1 की मल्टीप्लिकेशन, K2 की, अब K3 की। हमें पता है पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड होते हैं, सो 2K1 एडेड इन K2 एंड 3K3। Then terms involving x are added, then terms involving x square are added. Now on left hand side I have a polynomial of degree 2, and on right hand side I have a polynomial of degree 2. So the constant term will be equal to the constant term. This will be the equation 1. Term involving x will be equal to the coefficient of x. I am comparing coefficients of constant x and x square. Now the coefficient of x on left hand side is 8, whereas coefficient of x on right hand side is this one.
Then coefficient of x square on left hand side is 9, whereas coefficient of x square on right hand side is this one. So now I have got 3 equations and I have 3 variables. It is non-homogeneous system, so you can solve it even either simultaneously or you can use Gauss elimination method. It's up to you to find values of k1, k2 and k3. When you compute values of k1, k2 and k3, then put these values in equation B. Here k1, k2, k3, here and then here. Then check then this polynomial if it is equal to the polynomial on right hand side. After putting values of k1, k2 and k3, this side must be equal to this side. If equal, then we say that p1, p2 are for the linear combination of p, or p is a linear combination of p1 and p2. If by putting values of k1, k2 and k3, right hand side is not equal to this, then p is not a linear combination of p1 and p2. Here the matrices are given, A, B and C are given, and we have to check that D is a linear combination of A, B and C. I have written D is equal to K1A plus K2B plus K3C. Remember, whenever we are making the linear combination, this is vector, ये वेक्टर है, तो इधर भी ये ऊपर वेक्टर के साइन ज़रूर आप डालेंगे, क्योंकि वेक्टर वेक्टर से ही का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा. उसके बाद आपने क्या किया, डी की वैल्यू पुट की है, फिर k1, k2 और k3 की वैल्यूज़ पुट की हैं, सॉरी ए, बी और सी की. अब मैं k1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स के साथ, k2 को बी मैट्रिक्स के साथ, k3 को सी मैट्रिक्स के साथ. अब ये 3 मैट्रिसेस आ गई. मैट्रिसेस का सम हमें पता कैसे है, 4k1 प्लस k2 प्लस 0, 0 माइनस k2 प्लस 2k3, और इसी तरह -2k1 प्लस k2 प्लस k3 -2k1 प्लस 3k3 2 प्लस 4k3. अब ये मैट्रिसेस क्या है, दी मैट्रिसेस आर इक्वल. तो मैट्रिसेस कब इक्वल होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं. तो 4k1 प्लस k2 जो है वो इक्वल टू 6 हो गया. ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई. ये वाली वैल्यू आपकी 0 के इक्वल, थर्ड वैल्यू इक्वल्स टू 3 एंड फोर्थ वैल्यू इक्वल्स टू 8. अब ये आपके पास 3 अननोन है और आपके पास इक्वेशंस 4 हैं. यू कैन सॉल्व दीज साइमल्टेनियसली और यू कैन यूज़ गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसके साथ भी अगर आप साइमल्टेनियसली इसको करना चाहते हैं तो 1 और 2 में k2 एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन k1 और k3 की फॉर्म पे आ जाएगी. उसके बाद अगर आप 3 और 4 को सॉल्व करें तो इसमें भी k2 ही को एलिमिनेट करें, ताकि फिर आपके पास इक्वेशन k1 और k3 की फॉर्म पे आ जाए, तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी k1 और k3 की फॉर्म पे, और जब आप इसको सॉल्व करें तो इसमें से भी k2 को एलिमिनेट करें और इसमें भी इक्वेशन आपके पास k1 और k3 की फॉर्म पे आ जाएगी. फिर ये जो नई इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशन नंबर 4, 5 और इक्वेशन नंबर 6, इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको k1 और k3 मिल जाएंगे. उनको आप इन इक्वेशंस में पुट करके तो k2 फाइंड आउट कर लीजिएगा, जिससे आपके पास k1, k2 और k3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी. उसके बाद आप क्या करोगे, वापस इक्वेशन बी में आए, पुट वैल्यूज़ ऑफ k1 एंड k2 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर इक्वेशन. जब आप इधर पुट करेंगे वैल्यूज़ ऑफ k1, k2 एंड k3, that must be equal to this if they are linear combination of the vector d. यहाँ पे आप पुट करके चेक कीजिए कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या कि नहीं है.